السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ اب میں خیریت سے ہوں، آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں میرے فریج کی صاف صفائی۔ دیکھو اتنا سب برف تھا، آج میں نے اس کو بیچ میں روم میں لائی اور پنکھا چالو کر دیا اور سارا میں نے فریج کو خالی کر دیا۔ سارے سب ڈبے تھے ناشتے کے وہ میں نے باہر کر دیے اور فریج کو میں نے ساری چیزیں سیدھے باہر کر دی۔ دیکھو اس طریقے سے میں نے سارا پانی برف پگھل گیا، اس طریقے سے میں فریج کو صاف کر دیا۔ آج جمعہ کا دن تھا، پھر بھی میں نے اس فریج کو صاف صفائی نکالی کیونکہ بہت دن ہو چکے تھے۔ میں سوچ رہی تھی آج کروں کل کروں، اور دن چلے جاتے مگر کچھ کام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مجھے کتنی سب عورتیں مجھے فون کر کے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیسے کام کر لیتے ہو؟ تو ہم لوگ ایسے ہی گھر کا ہی کام کرتے ہیں، باہر اور جو بچوں کا بھی کرتے ہیں اور جو باہر کا کام ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ ہم ساری چیزیں اپنے آپ سے نپٹا لیتے۔ عورت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ ساتھ ساتھ میں دین کی باتیں بھی بہت جلدی سیکھنے کی بہت ضروری ہے۔ دیکھو جمعہ کے دن اکثر میں نے آپ کو بولا تھا کہ جمعہ کے دن کیا کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جمعہ کے دن جلدی اٹھنا چاہیے، غسل جلدی کرنا چاہیے، نماز جلدی پڑھنا چاہیے۔ چاہے اور وقت میں تم 3 بجے پڑھو مگر جمعہ کے دن جیوں بنے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھو۔ اور دوسرا کہ سرما لگا لینا چاہیے، ہو تو لگا لینا چاہیے، اور اپنے پاس کپڑے اس میں تو جو بھی اپنوں کو اچھا لگے اس کپڑے کو پہننا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن جیسا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے عید کا دن گنایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن مخصوص عمل جیسے کہ سورہ کہف جو کوئی جمعہ کے دن پڑھے گا تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اسی کے لیے نور چمکے گا۔ برابر نا؟ سورہ کہف پڑھے گا نا جو، تو اس کے لیے کفارہ ہوگا اور نور بھی چمکے گا۔ اسی طرح الباقیہ جو کوئی جمعہ کے دن 100 مرتبہ پڑھے گا تو تمام نیکی اعمال مقبول ہو جائیں گے۔ الباقیہ، اور جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا غفار اغفر لی جنبی تو حق تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، ہے نا؟ جمعہ کے دن یہ تسبیح تم پڑھو تو بہت اچھا۔ جمعہ کے روز بعد نماز عصر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، جیسے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ جمعہ کے سب کو جو 40 برس تک جو کلمہ پڑھے گا اس کا حج کا ثواب ملے گا۔ دیکھو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بہت بڑی فضیلت ہے، صرف 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے سے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے نا۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود شریف پڑھنا پلسی رات پر گزرنے وقت نور کے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھو کتنا، خالی 80 مرتبہ پڑھنے کا ہے اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے نا۔ تو اسی طرح جمعہ کی نماز بھی اول وقت میں پڑھا کرو، وقت ہو تو صلاۃ تسبیح پڑھ لو، وقت ہو تو زیادہ کی نماز آپ پڑھ لو۔ اور دیکھو نماز میں کہتے ہیں نا، نماز میں چوری کیسی ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک حدیث کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے کس طرح چوری کیے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ نماز میں چوری کے رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نماز میں چوری کری جائے گی، برابر نا؟ اس وجہ سے اپنی نماز بھی اچھی طریقے سے پڑھ لیا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو جو مقصد ہے وہ تو پڑھے، اچھی طرح پڑھے، جو بھی کام کرو تو اچھی طرح کرو، ہے نا؟ جیسے دیکھو آج میں فریج صاف کرتی تو کیا میں نے سارا سامان نکالا اور اس کو صاف کرے بنا رکھ دوں گی؟ اگر صاف کرے بنا رکھوں گی تو کیسا لگے گا؟ پھر سے وہ گندگی ہو جائے گی۔ تو اس سے اچھا کہ پھر فریج کو میں اچھے سے صاف کروں، پھر اس کے اندر پھر ساری چیزیں جو میں نے باہر نکالی تھی پھر اس کو میں اچھے سے رکھوں گی تو اچھا ہوگا نا۔ اب اگر آپ اپنے یعنی کہ
अपना अच्छे से नहीं रखेंगे तो कैसा लगेगा, गंदा ही लगेगा, फिर फ्रिज साफ़ करने का कोई मकसद नहीं। इस तरीके से नमाज भी रुकू सजदा अच्छे से करा करो ताकि अल्लाह को पसंद आ जाए। बंदों को बताने के लिए अपने नमाज थोड़ी पढ़नी, अपनों को तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए अपने अच्छी से नमाज पढ़े। अल्लाह को अपनों को मुँह बताना है, किसी को नहीं बताना। तो नमाज में चोरी किस तरीके से, देखो जरा भी गंदगी होती है तो मैं पूरी साफ़ करती हूँ। इस तरीके से नमाज अपनों को ना आती हो, कुछ भी ना आता हो, पढ़ो। देखो मेरे को भी अभी कितने ही ऐसे मखरज जो नहीं आते, मगर मैं शर्माती नहीं। मैं मेरे शौहर के पास मैं सीखती हूँ और मैं कितना सब सीखती हूँ। चाहे मैं पढ़ी हूँ, आलिमा बनी हूँ, फिर भी मैं मेरे शौहर के पास बहुत सब मैंने सीखा है। मैंने आलिम बनने में मैंने बहुत मुशक्क़तें उठाई। इंशाल्लाह मैं ये किस्सा आलिम में किस तरीके से बनी, कैसे मैंने इल्म हासिल किया, वो मैं आइंदा आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ना, यह बात पसंद हो कि जब वह दुरूद पढ़कर हमारे घराने पर यानी कि दुरूद पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपने घरानों में भी बरकत देगा। मैं जिस तरीके से मैंने पहले भी बताएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों को जब भी नाम आए तो अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो, बराबर ना। जो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला ने अपनों को कितनी बड़ी यानी हदीस बयान कर चुकी है ना। दुरूद शरीफ पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है। इस तरीके से अक्सर जुम्मा के दिन अक्सर मैं सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ में पढ़ती हूँ। और कुरान शरीफ में जैसा भी ये काम ख़त्म हो जाता है मैं फ़ौरन ही पड़ जाती हूँ। सुबह में मैंने बच्चों को स्कूल पहुँचाया, उसके बाद मैंने रात से ये डीप फ्रिज बंद कर दिया। मैंने चाय नाश्ता बनाकर खाना पकाकर फ़ौरन मैं ऊपर आ गई ताकि मेरा ये डीप फ्रिज साफ़ हो जाए। और मेरी जेठानी ने सारी चीज़ें मुझे यानी मैं ये साफ़ करती गई वहाँ तक मेरे जेठानी ने दूसरे सब जो काम थे वो करे और मैंने ये काम कर लिया ताकि मैं देखती हूँ कि मेरे को कैसी चीज़ रखनी है, क्या लगनी है, तो हम दोनों साथ में करते ताकि मुझे भी चीज़ मिल जाए, उससे भी चीज़ मिल जाए। इस तरीके से मैंने हर चीज़ को तजवीज़ से जैसे था वैसे मैंने रख दिया। फ्रिज को मैंने साफ़ करा, जो भी मेरा नाश्ता वगैरह था मैंने दिखाया। अब देखो इंशाल्लाह मैं आइंदा रोज़ में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से अपने फोजर करते। मैंने आपको तुअर के दाने का बताया था कि मैंने तुअर के दाने कैसे उबाले, उसको ठंडे पाड़े, थैली में भरे। इस तरीके से मैंने ये मेथी की भाजी है उसको धोकर मैंने बस ये पाउच में भर के रख दिया। और जैसे मैंने लीले प्याज भी इस तरीके से भरे, मैंने ये अदरक लहसुन पीस के मैंने बोला था कि मैं रखती हूँ, इस तरीके से मैंने ये अदरक लहसुन भी मैंने पीस के रखा हैगा। इसी तरीके से मैं हर चीज़ की तैयारी में करती हूँ। देखो ये मेरा ये अचार हैगा, मैं अचार को भी मैंने ज़्यादा था तो मैंने ये थैली में भर लिया था। और ये मेरे गाजर, मैंने जो केसरी गाजर है जो मुझे कभी नाश्ता बच्चों का बनाना होता है तो मैं इस वजह से मैं भर लेती हूँ। और मैं लाल प्याज भी मैं भरती हूँ। देखो ये लाल प्याज की अब एक ही थैली है, अब मुझे उसको लाल प्याज करने होंगे। इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो में बताऊँगी मैं लाल प्याज कैसे करती हूँ वो। और सारा नाश्ता मैंने जो था वो मैंने फ्रोजन में रख दिया। देखो इस तरीके से मैं रखती हूँगी। अब देखो मैं रमज़ान की पूरी तैयारी करूँगी तो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। जिस तरीके से मैंने ये दिन के बाद जुम्मा के दिन का सब सारा मैंने बताया, इंशाल्लाह आप लोग उस पर ज़रूर अमल करना और ज़रूर इसके ऊपर अमल करना। सूरह कहफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और कलमा शरीफ भी पढ़ना, तीसरा कलमा ज़्यादातर पढ़ना, चौथा कलमा भी पढ़ना। अल्लाह ताला से रो कर दुआ मांगना। क्या पता जुम्मा के दिन अल्लाह ताला फरमाता है जुम्मा के दिन एक ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त में कभी ना कभी वो वक्त में दुआ कबूल हो जाती है। तो क्या पता वो कौन सा वक्त होगा और अपनी दुआ कबूल हो जाएगी है। इस वजह से हर चीज़ अल्लाह से मांगा करो, जो भी चाहिए अल्लाह से मांगो। देखो बंदे से मांगोगे तो क्या होगा, आज देगा, कल जता देगा, फिर देगा, फिर जता देगा। मगर अल्लाह तो ऐसे हाथ से मदद करता है कि कोई भी नहीं देखता, सिर्फ अल्लाह ही देखता है, अल्लाह ही देने वाला है। इस तरीके से मैंने जो भी मेरी जो तकलीफ़ें थी, मेरे को बहुत मुसीबतें थी, तो मैंने उस वक्त मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा ताकि मुझे टेंशन में से मैं सारी टेंशन में से निकल जाऊँ। इस वजह से मैं ये आयत करीमा खूब पढ़ती थी। और हाँ, मैं 2 रकात नमाज सलातुन हाजात की मैं ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि मेरी सारी हाजतें पूरी हो जाए। और जो मैंने ये थैली रखी उस थैली के अंदर मैंने थोड़ा सा खीमा आएगा वो मैंने रखा हैगा। इस तरीके से मैंने पूरा डीप फ्रिज देखो साफ़ करा और सारी चीज़ें मैंने रख दी। अब डीप फ्रिज को मैं उसकी जगह पे ले जाऊंगी छेलने और मैंने इसको डाल दिया इसका बटन। और देखो मैं स्विच चालू अभी नहीं करूँगी, 2-3 कलाक बाद मैं स्विच चालू करूँगी। हमेशा जब भी फ्रिज साफ़ करो तो उसके बाद रख दो। उसके साथ साथ मैंने ये
कपड़े मशीन में धोने के लिए रख दिए, और ताकि मेरा सारा काम देखो, अब मैंने पूरा काम, कैसा गंदा मेरा घर था, कैसा था। अब उसके बाद मैंने देखो किस तरीके से मैंने पूरा फ्रिज भी क्लीन करा, और मैं घर भी कितना क्लीन करती हूँ। सारी औरतें बोलती है आप घर का कैसे करती हो, पढ़ती हो कैसे हो, वीडियो कैसे उतारती हो, कैसे डालती हो। अरे मेरा वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है। मुझे कितनी औरतें ऐसा सब पूछती है, हमसे ये काम नहीं होता, हम कैसे करें, हम घर का करते हैं, बाहर का नहीं होता, हम पढ़ने बैठाता नहीं है, हमको तालीम में नहीं आ सकते, हम घर में बच्चों का कैसा करते। इस वजह से मेरा ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि मुझे ये मकसद है कि हर औरत इस तरीके से घर का भी काम करे, दीन का भी करे, नमाज भी पढ़े, दुरूद भी पढ़े, और उसके साथ साथ सारी तस्बीहात भी पढ़े। अब देखो मैं ये 11 बजे तो मैं पूरा काम करके फिनिश हो गई थी, तो मैं क्या 11 बजे फिनिश काम हो जाने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब फातिमा तो मेरी चली गई है। अब मोहम्मद मेरा स्कूल से आने का उसको 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है, वहाँ तक मैं क्या करूँगी। तो देखो मैंने डीप फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने अच्छा सा पोता मैंने खुद से ही लगाया, और मुझे चाहिए कि मैं पोता हाथ से ही मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। मैं कभी हाथ से नहीं तो कभी मैं वो पोते के मशीन से लगा लेती हूँ। ऐसा मगर खुद का काम खुद नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कौन करेगा। ऐसा थोड़ी कि अपना काम सारी औरतें बोलते हैं सारा काम हमें करना पड़ता है, सारा काम हमें करना पड़ता है। काम करके किसको बताना है, सिर्फ अल्लाह ही देख रहा है ना। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि झाड़ू लगाओगे उसका भी सवाब है, अल्लाह ताला उसका भी सवाब देता है, अगर आप जतलाओगे नहीं तो। अगर बताओगे, चाहे कोई कितना भी कहे कि काम नहीं करती, मगर आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़मीन को अगर पोता लगेगा उसकी भी दुआ आपको मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से कोई भी काम करो इंशाल्लाह अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो, दुनिया से राज़ी करने के लिए मत करो। कोई किसी का नहीं होता है सिवाय अल्लाह ताला के। मैंने कहती हूँ क्या कि इतनी परेशान हालत में भी मैंने मुसल्ला बिछाया और मैंने आयत करीमा पढ़ी, ताकि मेरी सारी मगज की टेंशन है दूर और मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। मैं सारी बातें अल्लाह से करने लग गई। जब मैंने बातें अल्लाह से की, मेरे सारे मसले हल होने लग गए। मैं आपको बताऊंगी मैं किन तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, अल्लाह ने मुझे किस तरीके से आलिमुल गैब से मदद करी। सच बोलती हूँ, मुझे पहले से अल्लाह ताला ने बहुत मदद मुझे की। इस तरीके से आप भी अल्लाह के करीब हो जाओगे तो अल्लाह आपके करीब हो जाएगा। अगर दुनिया के करीब होगी तो दुनिया आपके करीब हो जाएगी। तो इस वजह से अल्लाह ताला बोलता है कि तुम मेरे करीब हो जाओ, मैं दुनिया भी आपके कदमों के नीचे ला के रख दूँगा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने को ऐसे अपने हुकूक अपने किस तरीके से अदा करने। इस तरीके से मेरा घर पूरा साफ़ हो गया। देखो इतना गंदा था, डीप फ्रिज में जब निकालती पूरा घर मेरा गंदा हो जाता है। मेरा घर पूरा साफ़ हो गया। और मैंने एक ही बात आपको समझाती हूँ कि घर का काम करते जाओ, जब दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ। सारा काम करने के बाद फारिग होने के बाद मैंने वज़ू कर लिया। अब उसके बाद मेरा जो जुम्मा के दिन मेरा सूरह कहफ बाकी था, वो मैंने सूरह कहफ पढ़ना चालू कर दिया, ताकि मैं नीचे चली जाऊँगी तो मुझे नीचे के काम हो जाए ना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से मैं नीचे नहीं जाती और मैं सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, ताकि मेरा सूरह कहफ बाकी ना रह जाए। उसके बाद मैंने जो मेरी तस्बीह बाकी थी वो तस्बीह भी मेरा आज ख़त्म करने की थी, क्योंकि डीप फ्रिज काम करते जा रही थी तो बात मेरी ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से मेरा थोड़ा बाकी हो गया। बाकी था मेरा जो दुरूद शरीफ पढ़ने का था, सारी तस्बीह मेरी थोड़ी बाकी थी। तो मैंने देखो तस्बीह भी मैंने पढ़ना मैं चालू कर दूँगी। सूरह कहफ ख़त्म करने के बाद मैंने फ़ौरन ही अपना आप को अपने तस्बीह में मैंने लगा दिया, ताकि मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। और मैं नीचे जाऊंगी तो मोहम्मद आ जाएगा, मेरा पूरा काम रह जाएगा। इस वजह से मैं देखो अब मेरी जो हैगा वो मैं कुरान शरीफ को रख दूँगी। रखने के बाद में मेरा जो काम जो मेरा मैंने आपको बोला था कि हर काम अपने अल्लाह के लिए करना है, किसी को बताने के लिए। जैसा मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ कि मुझे आपको बताने के लिए नहीं बता रही कि मैंने ये किया। मैं उन औरतों को बताती जो मुझे बार बार बोलते वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, उन औरतों के लिए मैं बताती। दुआ में याद रखना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करना मत भूलना। और आपके रिश्तेदारों में ज़रूर ये वीडियो पहुंचाना और शेयर करना। दुआ में